Hello dear students, we are going to start exercise 6.6 of differential equation. So in previous video we have already started this exercise 6.6 जिसके हमने first 5 questions वहाँ पे complete किए. Now in this video we are going to start the same exercise with 6 questions. 6 questions से आगे इस वीडियो में हम करते हैं. So these questions are based on growth and decay and Newton's law of cooling. So here 6 question देखो, the rate of decay of certain substance is directly, ये decay का problem है बेटा, of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. मतलब इस टाइप का ये differential equation आएगा. dn, suppose n is a number of substance at any time t, so dn by dt is proportional to the number at that instant. तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इन लास्ट वीडियो, you can get variable separable form, that is dn by dt will be equal to, ये डीके का प्रॉब्लम है इसलिए आप नेगेटिव लेते, नेगेटिव के, और इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करके हम सॉल्व करेंगे इसको. डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस के डी टी, एंड फर्दर वी इंटीग्रेट इट, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस इज व्हाट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इंटीग्रेट करने पर log ऑफ एन यू आर गेटिंग हियर इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इनिशियली t इक्वल्स टू 0 है तो ये n इज इक्वल टू हम n0 लेते हैं, सो दैट log ऑफ n0 जब t इज इक्वल टू 0 है तो तो c का वैल्यू क्या आएगा बेटा, log ऑफ n0. देयरफॉर log ऑफ n इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ n0. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एंड यू विल गेट हियर log ऑफ n अपॉन n0. ये n0 log n0 विल बी हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो log ऑफ n माइनस log ऑफ n0, मतलब ये log ऑफ n अपॉन n0 आएगा बेटा, माइनस के टी, ये बच्चा. सो n इज इक्वल टू n upon n0 you are getting here e raised to power what, minus kt, and therefore n is equal to what, n0 e raised to power minus kt. e raised to power minus kt. So you are using this equation. यहाँ पे see the question is like this, rate of decay, and here initially there are 25 grams of certain substance, and 2 hours later it is found that 9 grams are left. So find the amount left after 1 more hour. So initially 25 grams. Initially what, 25 grams. So here we have the equation. See here question number 6. n is equal to n0 into e raised to power minus kt. Sorry. Here writing equation, we are getting here equation n is equal to, see here n is equal to what, n0 e raised to power minus kt. So here initially what is number of substance, n0 is the initial when time t is equal to what, 0. When t is equal to 0, n equals to what, n0, and it is what, 25 grams. Followed. So therefore n will be equal to
25 grams e raised to power what minus kt. Okay, when n is equal to, see, n0 is what initial, that is 25 grams. Now this n is equal to how much is left after 2 hours, मतलब t is equal to 2 hours, then this n is how much left, it is 9 grams is left. Okay, 9 grams is left. So therefore we are writing here 9 is equal to how much is left, see, 25 grams, okay, certain substance, and 2 hours later it is found 9 grams. So it is found what 9 grams. So it is equal to 25 e raised to power, how many time, how much is the time is 2 hours, so minus 2k. Okay, yes, therefore 9 upon 25, okay, that is equal to e raised to power minus 2k. अब इसे स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड का, तो व्हाट यू विल गेट, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करते तो 3/5 इधर आएगा और राइट हैंड साइड आएगा e रेज़ टू पावर माइनस के, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है. सो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. ओके बेटा, e रेज़ टू पावर माइनस के इज इक्वल टू 3/5, ये इक्वेशन आपको मिल रहा है. ओके, देन what is to be find out here. Okay, one more hour के बाद how much is the amount left, ये फाइंड करना है. मतलब t is equal to 1 more hour means what, 2 hours के बाद 1 more hour मतलब 3. so when t is equal to 3 hours, ठीक है ना, तो n कितना है ये फाइंड करना है. ओके बच्चा, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे n. So n is equal to what, इसी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. n is equal to n0, ओके, e रेज़ टू पावर माइनस kt. बट अब आपका n0 क्या है, 25 है. सो 25 e रेज़ टू पावर माइनस k इंटू व्हाट इज द टाइम, t, kt मतलब t टाइम इज व्हाट 3. सो दिस इज इक्वल टू 25 e रेज़ टू पावर माइनस k, एंड आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, q रेज़ टू पावर व्हाट 3. हाँ, e रेज़ टू पावर माइनस k इज इक्वल टू 3/5 है. सो देयरफॉर यू आर गेटिंग हियर 25 इंटू, ओके, e रेज़ टू पावर माइनस k फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज 3/5 एंड होल क्यूब. ओके बेटा, so it is equal to 25 into ये 27/125. so this 25 is getting cancelled with beta, 25 is getting cancelled, and here finally you are getting here 27 divided by 5 grams is left. Okay, after what, 3 hours. So that substance is left how much gram, 27/5 grams is left after 3 hours, that is after 1 more hour. Okay, we will do now question number 7. So what is this question number 7 beta? Okay, see here question number 7, find population of city at time t. It is a population question. On population means what, it is a problem of growth. Okay, disintegration means what, it is a problem of decay. Find the population of city at time t given that rate of increase of population is proportional to the population at that instant. Okay, and that in period of 40 years the population increases from 30, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन n0 what 30,000,
and in 40 years, okay, it increases what, 40,000. so you have to find population of city at any time t. So question number 7, see here, question number 7 is what here. Now question number 7, यहाँ पे it is a problem of growth, तो population p is equal to p0 into e raised to power plus kt, because it is a problem of growth. So हम ये equation use कर सकते हैं, p is equal to p0 e raised to power what, kt. ओके बच्चा, अभी से population, initial population p0 is given, that is 30,000. ओके बच्चा, initial population is given, okay, the population is increased from 30,000 to 40,000, मतलब initial population is this, okay. Now in time what, 40 years. So when time t is 40 years, okay, the population is how much, it increased to 40,000, okay, it increased to 40,000. therefore यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके बेटा, 40,000 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 40,000 इज इक्वल टू 30,000, ओके, 30,000 e raised to power what time, 40 years, 40 के बेटा, टाइम को सब्स्टिट्यूट करो t, ओके बेटा. अभी ये पूरा 300, ये 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 4/3 इज इक्वल टू e raised to power 40 के आएगा बेटा. अभी therefore okay, 4/3, so you are getting this equation, e raised to power 40k is equal to how much, this 4/3, ये equation आपको मिल रहा है. but what is asked over here, find the population of city at any time t, मतलब ये find करना है. so population at any time t is p is equal to what, p is equal to p0 e raised to power kt, ओके, टाइम t. हाँ, अब इसमें population p0 is how much, initial population is this 30,000, so therefore p is equal to 30,000, okay, into e raised to power k, okay, t, ठीक है ना. अब हम e raised to power k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे. सी हियर 4/3 is equal to e raised to power k and whole raised to power what, 40, that is e raised to power k कितना होगा बच्चा, 4/3 and whole raised to power 1/40, ओके. सो यहाँ पे हम पॉपुलेशन फाइंड करेंगे एट एनी टाइम t, दैट विल बी 30,000. अब e raised to power k का ये वैल्यू है 4/3 raised to power 1/40, so it is 4/3, ओके बेटा, 4/3 raised to power 1/40, और raised to power t है तो t/40 होगा बच्चे, ओके, t/what, 40 होगा. so its answer is this 4/3 t raised to power t/40. यहाँ पे the answer provided is 4/9 है, तो it should be 4/3, ये नोट करना है. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पॉपुलेशन एट एनी टाइम t फाइंड करना है बच्चे. अभी क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
It is on Newton's law of cooling. So a body cools according to Newton's law from 100 degree Celsius to 60 degree Celsius in 20 minutes. The temperature of surrounding is being 20 degree Celsius. How long will it take to cool down? हाँ, यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो, d theta by dt. See, this is what question number 8. d theta by dt, it is proportional to temperature theta minus surrounding temperature theta 0. ओके, हाँ, अभी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या लेंगे हम? नेगेटिव के, माइनस के. डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा 0, ऐसा आएगा बेटा. सो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0. ओके, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का के इंटू डी टी, ऐसा आएगा बेटा. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0. ओके बेटा, इट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, हाँ, तो इसे हम यूज करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे थीटा 0 क्या है बेटा? इट इज सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको. तो क्वेश्चन में सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है? ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस बेटा. ओके, 20 डिग्री सेल्सियस. अब इनिशियल टेम्परेचर क्या था? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस. ओके बेटा, ये है इनिशियल टेम्परेचर. तो इस इक्वेशन में आप अगर रखते हैं तो लॉग ऑफ, लिसन हियर, लॉग ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा 0 इज 20, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस के टी. ठीक है, प्लस सी. तो लेकिन t क्या है बेटा? जब t इज इक्वल टू 0 है तब इनिशियल टेम्परेचर मतलब t इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा इज 100. तो यहाँ पे इसे हम 0 करेंगे और प्लस c मिलेगा, तो c का वैल्यू मिलेगा. ये तो 0 आएगा, आपको मिलेगा c का वैल्यू. अब देयरफॉर c विल बी इक्वल टू व्हाट? लॉग ऑफ 80 आएगा बच्चा. ओके, लॉग ऑफ क्या आएगा? 80 आएगा. नाउ लॉग ऑफ 80 आएगा बेटा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. तो अभी ये c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 80 हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन. लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 80. ओके बेटा, प्लस लॉग ऑफ 80. सो अभी यहाँ पे टेम्परेचर व्हाट in time t is equal to how much? 20 minutes. Okay, the temperature will reduce to what? 60 degree Celsius beta. Okay, temperature will reduce to what? 60 degree Celsius in 20 minutes. So इस इक्वेशन में हम थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं? हम लॉग ऑफ थीटा, थीटा इज 60 और रूम टेम्परेचर है 20. ओके, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, टाइम है 20 और प्लस लॉग ऑफ 80. ऑलरेडी आपको सी का वैल्यू मिला है. ओके बेटा, दिस इज लॉग ऑफ 40 माइनस ये लॉग 80 हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे बेटा, इज इक्वल टू माइनस 20 के. ओके, therefore
So log of 40 minus log of 80 will be log of 40 upon 80 आएगा बेटा, 40 upon 80 and which is equal to minus 20k. So that minus 20k कितना आएगा बच्चा, log of 1 by 2 आएगा. ओके, log of 1 by 2 आएगा. So ये इक्वेशन आपको याद रखना है. ओके, अब आपको फाइंड करना है कि when theta is equal to, listen here, when theta is equal to, see here, when temperature falls to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो तब टाइम t क्या होगा ये फाइंड करना है. तो इसी इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं log ऑफ, देखो बच्चे, log ऑफ थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब थीटा 0 ये ऑलरेडी 20 है, माइनस के टी के टाइम फाइंड करना है आपको, प्लस log ऑफ 80 बच्चा. सो दिस इज log ऑफ व्हाट, 30 माइनस 20 दैट इज 10, और ये log ऑफ 80 लेफ्ट हैंड साइड में लेते बेटा, log of 80 and that is equal to what, minus 80. okay, yes. अब ये आएगा log of 10 upon 80 is equal to minus kt आएगा बेटा. So here log of 1 by 8 is equal to minus kt आएगा. ओके, बट log ऑफ 1 upon 8 मतलब 1 upon 2. ओके बेटा, 1 upon 2 हमें t फाइंड करना है. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड व्हाट, t. सो 1 by 2 क्यूब आएगा मतलब 1 by 8 आएगा बेटा, माइनस kt. ओके, यस. सो विच इज 3 टाइम्स ऑफ log of m raised to power n मतलब n log m. so log of, okay, 3 times of log of 2 आएगा बेटा, माइनस kt. ओके, यस. हाँ, एंड वी नो log of 1 by 2 कितना है बेटा, माइनस 20k. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते बेटा, ये log 1 by 2. so therefore 3 into log 1 by 2 which is minus 20k है ना, that is equal to what, minus k into time t. so we are interested to find what, time t. so ये आएगा बेटा minus 60k. okay, minus 60k and right hand side is minus kt. yes, this k is getting cancel and minus भी साइन कैंसिल होगा और टाइम t मिलेगा बेटा 60 मिनट्स मतलब 1 आवर. तो टू फॉल टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 100 to 30 डिग्री सेल्सियस, it will require how much time, how long it will take. so it is 1 hour. okay, it is what, 1 hour. then we will do the next question, that is question number 11. देखते हैं बेटा, we'll do here question number 11. yes, the rate of growth of population of a certain city, okay, in time t is proportional to the size of population. for a certain city it is found that constant of proportionality already is given. तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ऑलरेडी गिवन. फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 years. if the population is 10,000 एंड ये अप्लीकेबल है इसमें, तो इसका वैल्यू दिया है. ओके, सो लेट्स डिस्कस पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ जो है, ग्रोथ का जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें आप यूज़ कर सकते ये इक्वेशन. यहाँ पे प्लस के होगा, p इक्वल्स टू p0 e रेज़ टू पावर kt. द सेम इक्वेशन यू कैन यूज ओवर हियर. सो वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 11 बेटा.
So we are doing here question number what? 11. So what is this question number 11 beta? Yes, the rate of growth of population of a city at any time t is proportional to the size of population. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पर उसका सॉल्यूशन ये आता है बेटा, e⁻kt. ओके, अब इसमें क्या दिया है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ओके, इसका वैल्यू दिया है. ओके, व्हाट इज गिवन ओवर हियर. अब ये k का वैल्यू दिया है बेटा, एंड हाउ मच इट इज. k का वैल्यू दिया है 0.04, ये दिया है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू दिया है. अब इनिशियल सी हियर, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 ईयर्स. इनिशियल पॉपुलेशन, तो इनिशियल पॉपुलेशन मतलब P0 भी दिया है बेटा. हाउ मच इट इज 10,000 दिया है. ओके, ये है इनिशियल पॉपुलेशन. अब हमें पॉपुलेशन ऑफ सिटी यू हैव टू फाइंड आफ्टर 25 ईयर्स. सो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, 25 ईयर्स, देन आपको फाइंड करना है पॉपुलेशन p. ओके, यस. सो हियर पॉपुलेशन p इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, इंटू e⁻, ये 0.04 खाली सब्स्टिट्यूट करना है. और टाइम t कितना है बेटा, टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, 25. सो व्हाट विल बी दिस पॉपुलेशन. ओके, 10,000, यस बेटा, e⁻, अब 0 पॉइंट, लिसन हियर, 0.04 और into 25, it comes out to be 1. Okay, so ये होगा, न्यूमरेटर will be equal to what, sorry, power index will be equal to what, 1. मतलब population p is equal to 10,000 into e. Okay, into what, e. अब e का वैल्यू दिया है आपको, so it is 10,000 इंटू ई. ई का वैल्यू क्या दिया था, 2.7182. ओके, 7182. फॉलो. हाँ, अब इसमें ये 10,000 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट पूरे कैंसिल होंगे और आपको मिलेगा 27,182. मतलब 27,182 will be the population of, okay, that certain city after what, 25 years. So therefore population, okay, population after 25 years, okay, will be 27,182 will be the population. Okay बेटा. अब हमें क्वेश्चन करना है 12 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. See what is this question number 12. Okay, a radium decomposes at the rate proportional to amount present at any time t. तो ये डीके का प्रॉब्लम है, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम है. n इज इक्वल टू n0 e⁻kt. सो रेडियम डिकम्पोजेस एट रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, मतलब n इज इक्वल टू n0 e⁻kt. ओके बेटा, एट एनी टाइम t, p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स, मतलब इतना परसेंट डिके हो रहा है. ओके, इन 1 ईयर, इन व्हाट, 1 ईयर. What percent of amount of radium will be left after 2 years? Okay beta. So let's start question number 12. So question number 12, how we solve, listen. It is a problem of decay. So you can write here directly the equation n is equal to n0 e⁻kt. नेगेटिव साइन इसलिए कि वो डिके हो रहा है. ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर. और क्या दिया है यहाँ पे, आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year ना.
So it decomposes if p% of amount disappears in 1 hour, 1 year. तो एक साल में 1 ईयर में कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है? p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल कितना है बेटा? n0. p% ऑफ n0 ओके डिकम्पोजेस, ठीक है ना, मतलब इतना कम हो रहा है. So what is p% of n0? So p% of, देखो p% of n0 कितना होगा, मतलब ओरिजिनल अमाउंट. So it is p upon 100 into n0, ये होगा p% of n0. तो ये इतना कम हो रहा है. ओके, see decomposes at the rate proportional to amount present at any time t if p% of amount disappears in 1 year. तो मतलब n will be equal to what? n0 minus p% of that n0, okay, in what? In 1 year, okay, in what? 1 year. So therefore we will write here, what we can write here, listen, therefore ये n इतना कम हो रहा है बेटा, n0 माइनस p अपॉन 100, मतलब p% ऑफ n0 इतना कम हो रहा है. ये ओरिजिनल n0 है, e रेज़ टू पावर इन व्हाट टाइम? इन 1 ईयर, मतलब t इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1. हाँ, सो यहाँ से हम n0 कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा n0 कैंसिल होगा. तो व्हाट वी विल गेट? 1 माइनस p अपॉन 100 आएगा बेटा. इट इज e रेज़ टू पावर माइनस k. ओके, सो यू आर गेटिंग e रेज़ टू पावर माइनस k ओवर हियर. तो क्या आएगा? 1 माइनस p अपॉन 100. ओके, दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस k. नाउ व्हाट टू फाइंड? ओके, इन टाइम 2 years. Okay beta, in time 2 years, what percent amount of radian will be left after 2 years? So after 2 years means n will be equal to what? It is n0 e raised to power minus 2k. okay, यहाँ पे t के बदले हम लेंगे 2. हाँ, but it is n0 into e raised to power माइनस के. ओके बेटा, एंड स्क्वेयर आएगा. देखो माइनस 2k मतलब माइनस के एंड स्क्वेयर, बट वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस के. सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू व्हाट? n0, और ये e रेज़ टू पावर माइनस के जो है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 माइनस p अपॉन 100. ओके बेटा, होल स्क्वायर. हाँ, तो हमें परसेंटेज रिडक्शन चाहिए. ओके, ये हो गया 2 ईयर्स के बाद इतना अमाउंट विल लेफ्ट. ओके, दैट इज अमाउंट लेफ्ट इन 2 ईयर्स. इन व्हाट? 2 ईयर्स कितना होगा बेटा? n इज इक्वल टू n0 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर, 1 अपॉन p 100 स्क्वायर. ठीक है ना? देयरफॉर व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन? परसेंटेज रिडक्शन विल बी हाउ मच? Percentage reduction will be how much? So n0 1 minus p upon 100 square divided by n0, मतलब ये इनिशियल अमाउंट into 100. ओके बेटा, तो अब इसमें ये n0 और n0 कैंसिल होके that percentage reduction will be equal to how much? 1 minus p upon 100. ओके बेटा, स्क्वायर, और ये 100 मतलब 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप.
ओके, तो ये हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, अगर ब्रैकेट में लेंगे तो 10 आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 10 माइनस 10 इंटू पी अपॉन 100 होल स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा, 100 जो है अंदर लिया ब्रैकेट में, तो ये होगा 10 माइनस पी बाय 10 होल स्क्वायर, इतना परसेंट रिडक्शन होगा। ओके, सो व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट विल बी reduced in 2 years? So percentage reduction will be equal to how much? Okay, percentage reduction will be 10 minus p upon 10 square percent. So yes बच्चा, हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 7, 11 और 12 ये सारे क्वेश्चंस हमने इसका सॉल्यूशन अच्छे से किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।